A very refreshing morning, all of you. How are you all, students? I hope you all are fit and fine at your home. I am your GK teacher Namisha. This is the virtual classes of Oscar Public School. So children, have you got your GK UT syllabus? Yes, I already sent it in video. So beta, 6 chapters will come in your UT. Chapter number 1, animated movies. Chapter number 2, helpful robots at home. Chapter number 3, extreme airport of the world. Chapter number 4, largest and highest in India. Chapter number 5, India's freedom fighter. And chapter number 6, body language. These 6 chapters will come in your UT. So बच्चे, in today's video we have to just discuss the question answers of these chapter. बच्चे, this is the chapter number 1, animated movies, page number 5. So बच्चे, you have to just see this in this animated movies. They foster imagination and drive to the dream. Basically beta, these are the imaginated movies. They also develop values. Recognize the following animated movies of all the time. Write their name. You have used the box. So this is the picture of the Lion King. In the second picture, this is there the Beauty and the Beast. Third one, Wall-E. The fourth one, this is the Panda. And what they are doing? क्या कर रहा है ये? Kung Fu. Karate Kung Fu. So the movie name is Kung Fu Panda. You like it? Yes. So these are the 3 Incredibles. What is the name of this movie? The Incredibles. The 6th one is Ice Age. यहाँ ice दिख रहा है आपको? So this movie is animated movie is Ice Age. See in this picture, there is a water scene. This is the castle and this is the mermaid. So what is the name of this movie? The Little Mermaid. And one of my favorite movie. Tell me, there is a Mowgli, Bagheera and Baloo. The Jungle Book. बच्चे, this is the second chapter, helpful robots at home. बेटा, these are the machines जिन्हें हम रोबो भी कहते हैं, robot. So बेटा, these are the robots at home. So make everyday life easier. और comfortable बनाने के लिए हम इन robots का use करते हैं. It is an automatic vacuum device. Vacuum means जो आप देखते हैं वैक्यूम मशीन होती है जो सारी पावर सारा डस्ट जो है वो कैच कर लेती है. दैट इज कॉल्ड रोम्बा. व्हाट इज कॉल्ड? रोम्बा. इट इज़ एन ऑटोमेटिक फ्लोर वॉशिंग डिवाइस. पोछा लगाने की मशीन है. आपकी मम्मी लगाती है ना पोछा, वो तो बाय हैंड लगाती है. सो ये कैसे? ऑटोमेटिक फ्लोर वॉशिंग डिवाइस. इट्स कॉल्ड स्कूबा. इट इज़ एन ऑटोमेटिक गटर क्लीनिंग एडवाइस. A device. So basically this is called a luge. It is an automatic lawn mower device. This is a lawn. Lawn means garden में basically use होता है बेटा. Robo-Moo. It has a camera and speaker phone that connect home with their user away from their home. Basically जैसे अभी इंडिया में क्या चल रहा है? Alexa. So basically Alexa क्या करती है? That is also a robot. ठीक है, दैट इज़ अ कनेक्ट आर. इसमें कैमरा भी है, स्पीकर फ़ोन भी है और ये हमारे ऑल सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड भी है. Another one is it has a security camera and can announce police if stranger try to open door or window of the house. यदि कोई स्ट्रेंजर हमारे घर में घुस आता है सो ये सिक्योरिटी एजेंट क्या करता है? क्या बोलता है? पुलिस. अगर कोई ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करता है. इट इज़ द नेम ऑफ एजेंट 007. जैसे कहते हैं ना जेम्स बॉन्ड 007. सो इट्स नेम इज़, दिस रोबो नेम इज़ एजेंट 007.
It has alarm that forces the user to get up from bed. This is the alarm. Okay, that is name is Nandy clock. It irons the shirt. Dressman iron the shirt. ये शर्ट को आयन करता है. आयन मीन्स प्रेस करता है. दैट इज ड्रेसमैन. Come to that, chapter number 3, extreme airports of the world. Beta, those who I'm just also sharing the PDF of this chapters. So if you having a pending work, so you can just complete your work. The first one is, it is the only airport in the world where scheduled flight use in beach as a runway. यानी कि यहाँ पर क्या है, रनवे की जगह बीच में लैंड होती है. दैट इज बारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन स्कॉटलैंड. सेकेंड वन, दिस इज द ओनली एयरपोर्ट वेयर अ रेगुलर फ्लाइट ट्रेन रोल्स थ्रू एवरी डे. यानी कि यहाँ पे ट्रेन्स भी जा रही हैं और फ्लाइट भी यहाँ पर लैंड करती हैं. दैट इज गिस्बॉर्न एयरपोर्ट. दैट इज इन न्यूजीलैंड. This is the only airport that does not have a paved runway. It has a long stretch of snow and ice are runway. यानी कि यहाँ पर क्या है बेटा, रनवे जैसे बिल्कुल एक पाथ बना होता है रनवे, वो नहीं है. यहाँ पर जब लैंडिंग होती है तो वो प्रॉपर स्नो में होती है. दैट इज़ आइस रनवे. और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका. बिकॉज आपको पता है कि अंटार्कटिका में 12 मंथ्स ही यानी कि फुल ऑफ द ईयर क्या रहता है, स्नो कवर्ड रहता है, इसीलिए ये आइस रनवे है. फोर्थ वन, दिस एयरपोर्ट इज़ यूनिक. यूनिक मीन्स ये एक अनोखा है. बिकॉज हेयर द मेन लैंडिंग स्ट्रिप पासिस थ्रू द मेन स्ट्रीट ऑफ द सिटी. ट्रैफिक हैज़ टू स्टॉप फॉर एवरी प्लेन दैट लैंड और टेक ऑफ. ये है गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी. ये एक ऐसा इकलौता एयरपोर्ट है बेटा और यूनिक है जो कि मार्केट के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट बना हुआ है. और जब भी प्लेन लैंड होते हैं या टेक ऑफ होते हैं तो मार्केट और ट्रैफिक क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. This airport is a large enough to be viewed from space. It faces frequent earthquakes, cyclone and unstable seabeds. ये एक ऐसा यूनिक एयरपोर्ट है जो दूर से स्पेस में से भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक भी आते हैं. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, साइक्लोन्स मीन्स चक्रवात. ठीक है, दैट इज़ इन कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन जापान. आपको पता है जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं. ऑन दिस एयरपोर्ट द एरोप्लेन्स हैव टू फ्लाई ओवर द बीच एंड देन ओवर द रोड बिफोर लैंडिंग ऑन रनवे. दैट इज़ अ प्रिंसेस जूलियाना सेंट मार्टिन. ये एक ऐसा इकलौता एयरपोर्ट है जहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई भी करते हैं बीच के ऊपर और उसके बाद लैंड करते हैं कहाँ पे, रनवे पे. सो बेसिकली दैट इज़ अ प्रिंस जूलियाना एयरपोर्ट इज़ इन सेंट मार्टिन. दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इन इंडिया. बेटा लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर. दिस इज़ द हाईएस्ट गेटवे फतेहपुर सीकरी, आगरा. What is the name of this gateway? बुलंद दरवाज़ा. Repeat after me. बुलंद दरवाज़ा. The next one, the highest dam in उत्तराखंड. उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम. रिपीट आफ्टर मी. आप में से बहुत सारे बच्चे तो टिहरी डैम से ही होंगे या उत्तराखंड से होंगे, सो दे नोज बेटर टिहरी डैम. द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर प्लेटफॉर्म. गोरखपुर प्लेटफॉर्म बेटा, गोरखपुर इज इन उत्तर प्रदेश, सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म. विच इज़ द हाईएस्ट waterfall in Karnataka? Conchical Fall. What is the name of this? Conchical Falls. The highest minaret, Delhi. What is the name of this minaret? Yes, Qutub Minar.
द हाईएस्ट रेनफॉल मेघालय, मेजोनराम, ठीक है, मौजिनराम। इट इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल इन मेघालय। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं होती है बेटा। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सिक्किम, दैट नेम इज़ कंचनजुंगा, नेम इज़ कंचनजुंगा। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन मुंबई, मुंबई में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है इम्पीरियल टॉवर, इम्पीरियल टॉवर। द हाईएस्ट रोड इन लद्दाख, खुरदांगला, रिपीट आफ्टर मी, खुरदांगला। ओके बच्चे। द नेक्स्ट चैप्टर इज इंडियाज फ्रीडम फाइटर। सो बेटा एज यू नो दैट इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री and we all are the free citizens. So beta you have to enjoy your freedom today in the contribution of many freedom fighters. So हम उन्हीं freedom fighters के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे. This is known as the Iron Man of India. सबसे पहली लाइन में ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए. Who is called the Iron Man of India? He integrated India by uniting 565 princely states. He became the first deputy prime minister and home minister independent India. सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, इनका एक स्टैचू भी बना हुआ है एंड नेम ऑफ द स्टैचू इज, टेल मी दैट, Statue of Unity. Where it is located? It is located in Gujarat. Second one, he is popularly known as Punjab Kesari. He was injured seriously by lathi blows while opposing the Simon Commission and suffered death. यानी कि इनको पंजाब केसरी भी कहा गया है. Who is the he? लाला लाजपत राय. ही इज़ रिवोल्यूशनरी, ये क्रांतिकारी थे. ही इज़ ऑल्सो रेफर टू शहीद, इसी नाम से आपको पता चल जाएगा ये कौन है. इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ही थ्रो 2 bombs ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर नो वन वॉज हर्ट. ही वॉज हाउएवर अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ. ही इज़ अ वेरी फेमस रिवोल्यूशनरी एंड हिज नेम इज़ भगत सिंह, शहीद भगत सिंह. The next one is, he is popularly known as Netaji. He formed the Azad Hind Fauj, जिनको हम आज इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, and fight to be liberate the country from British rule. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. He followed the Hinduism Socialist Republican Association. When they surrounded by the armed police, he gave them a tough fight, then killed himself with his last bullet at the Alfred Park in Prayagraj. चंद्रशेखर आज़ाद ये वो इंसान थे जिन्होंने अपने आप को खुद ही गोली मार ली थी. ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर एंड पोएट, यानी ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे और पोएट भी थे. और वो कैसी पोएट लिखते थे? पेट्रियाटिक पे, देशभक्ति पे लिखते थे. दिस रिवोल्यूशनरी वॉज इन्वॉल्व इन लूटिंग द मनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द काकोरी कांड. हिज नेम इज़ राम प्रसाद बिस्मिल. राम प्रसाद बिस्मिल. सो द लास्ट चैप्टर इज body languages. So beta these are the some idioms and meanings. Tooth and nail यानी कि दांत और नाखून जिसे हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग है with one's full might यानी अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से. hold one's tongue, ठीक है, यानी कि अपनी ज़ुबान पर लगाम दो. इट मीन्स कि be silent, चुप हो जाइए. Be on one's toes to keep someone alert. Be one's toes means to keep someone alert, किसी को alert करना. Live from hand to mouth. Leave from hand to mouth. Not able to fulfill यानी कि किसी चीज़ को fulfill one's basic need यानी किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाना. Pull someone's leg.
टू टीज समवन, किसी की खिंचाई करना, टांग खींचना, जिसे कहते हैं किसी को टीज करना. इट इज़ वेरी बैड हैबिट बेटा, किसी की टीज नहीं करना किसी को. टू बी बैकबोन यानी मेन सपोर्ट, लाइक योर पेरेंट्स इज योर बैकबोन, इट मीन्स योर मेन सपोर्ट. हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा. डिवोटेड फुली यानी कि किसी के साथ आप फुल्ली डिवोटेड को क्या एडम्स में आप बोलेंगे, हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा. अबव समवन्स हेड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि कहते हैं ना कि मेरे को समझना मुश्किल है, मेरे सर के ऊपर से निकल गया. इट मीन्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. गिव समबडी अ बिग हैंड टू चीयर अप. हम कहते हैं ना लेट्स एवरीबॉडी गिव अस सम बिग हैंड यानी कि टू क्लैप और टू चेयर करना. मेक वंस हेयर टू स्केयर यानी कि किसी टू मेक समवन्स हेयर स्टैंड ऑन इट्स एंड टू स्केयर समवन यानी कि किसी से डर जाना. बर्न वंस फिंगर, सफ़र फाइनेंशियली यानी कि किसी को पैसों की तंगी होना. कीप एन आई ऑन, टू वॉच केयरफुली यानी टीचर्स कहती हैं जस्ट कीप आई ऑन इट, सो इट मीन्स टू वॉच इट केयरफुली. बीट वंस ब्रेन आउट, टू थिंक हार्ड यानी कि अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग को जीतना यानी कि कोई भी चीज़ को मतलब कुछ ऐसा सोचना जो किसी ने पहले नहीं सोचा हो. जैसे किसी ने पहले सोचा था कि ऐसा भी कुछ मशीन होगी जिससे आप आकाश में उड़ सकते हो, नहीं. तो ये राइट ब्रदर्स से जिन्होंने ये सोचा. सो बेसिकली बेटा टू थिंक हार्ड, विद ओपन आर्म्स, टू विद ग्रेट वार्म यानी कि किसी को खुले दिल से अपनाना. ब्रिंग समवन्स टू हैज हर नीव, फोर्स समवन्स टू सबमिट किसी को अपने कदमों में झुकाना, जो कि बहुत गलत बात है. ठीक है बेटा. सो दीज 6 chapters will come in your UT. सो बेटा आई एम ऑल्सो शेयरिंग द PDF ऑफ दिस. जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेंगे और जो कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन है. All the best for your UTs. Bye bye and take care.